और अब बात पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से आए बड़ी खबर की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ चुके हैं। गोटाबाया कोलंबो से भागकर मालदीव पहुंचे हैं। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने संसद के स्पीकर को आज अपने इस्तीफा देने के बारे में जानकारी दी, लेकिन इस्तीफे से पहले ही वो श्रीलंका छोड़कर मालदीव पहुंच गए। और ये भी खबर है कि गोटाबाया ने अपने इस्तीफे को लेकर कुछ शर्तें रखी है। इस बीच जो प्रधानमंत्री हैं वो 5 मंत्रियों समेत इस्तीफा दे चुके हैं और श्रीलंका लगातार एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। नाराज जो प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास को अभी भी अपने कब्जे में लिए हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार पूरी तरह से हट नहीं जाती तब तक राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे। हम सीधा रुख कर रहे हैं कोलंबो से हमारी सहयोगी श्रीजा का। Immediately took to the streets to protest. They say they will continue to protest. They will lay siege eventually to the parliament. We did of course see how these protesters have conquered already the presidential palace, the temple trees which belongs to, it's of official residence of Prime Minister Ranil Wickremesinghe, and also eventually the old parliament, the presidential secretariat. It's all taken over by these youngsters, basically, if you can see, the young citizens of Sri Lanka. Now, they are out on the streets in search of Prime Minister Ranil Wickremesinghe. Where exactly is he? Even his location is not known at the moment. So these are the tens and thousands of protesters who are out in the streets in search of Mr. Ranil Wickremesinghe, because they clearly don't want him also to be continuing in any of the posts, be it the Prime Minister post or even President's post. What's more important is that just on July 9th, Mr. Ranil Wickremesinghe had in fact announced he is willing to resign if an interim government can be formed immediately. When that is done so, he will be stepping down from his position of Prime Ministership. But these protesters have learnt of an information that once Gotabaya Rajapaksa resigns from his post as the president, Mr. Prime Minister Ranil Wickremesinghe will take over as the president of Sri Lanka. That's the information these Sri Lankans have learnt, and that's why they have spilled onto the streets in search of Ranil Wickremesinghe. Of course, there is no information or the whereabouts of Mr. Ranil Wickremesinghe is not known at the moment. NDTV did get in touch with his office, but they informed us that due to security reasons, national security reasons, they do not want to disclose Mr. Ranil Wickremesinghe's location. So the next few hours is going to be extremely crucial. We have to wait and watch out what things, how things are going to pan out, because these are the protesters, just like how we witnessed on July 9th. Remember how they went completely berserk, rampaged into various offices, ransacking several offices. So, we see several of the security forces even today on ground, but what we did witness just about a few moments ago was they once again managed to breach the security, the barricades, and they ran into the office which they believed Mr. Ranil Wickremesinghe is in hiding, but unfortunately he wasn't there. And now once again they have come onto the streets, and the question that they are asking, where exactly is Ranil Wickremesinghe? Back to you. तो यहाँ पर हमारी सहयोगी श्रीजा को आप सुन रहे थे। लाइव रिपोर्ट वो कोलंबो से दिखा रही थी, जिसमें यहाँ पर ये बता रही थी वो कि जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनको ये जानकारी मिली है कि जो राष्ट्रपति गोटाबाया हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं और रानिल विक्रमसिंघे जो हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कार्यभार संभाल लेंगे। तो इसलिए वो यहाँ से उन्हें हटाने आए थे। वो जो सचिवालय है उस दफ्तर तक वो पहुंचे थे और बड़ी तादाद में यहाँ पर वो पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिली कि जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो यहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और इसीलिए प्रदर्शनकारी अब एक बार फिर सड़कों पर बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। कादम्बनी शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कादम्बनी, ताजा अपडेट्स। देखिए, ताजा अपडेट तो श्रीजा ने दे दिया है शारिक। जिस तरह से वो बता रही कि ओल्ड सेक्रेटेरिएट जो है वहां का वो प्रदर्शनकारी उसमें घुस चुके हैं और अगर कुछ ही देर में उनको जानकारी नहीं मिलती है, कुछ ही घंटों में, कि आखिर रणील विक्रमसिंघे क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है वहां पर पॉलिटिकली, तो स्थिति जो है वो कुछ और बिगड़ सकती है। आपको बता दूं कि जो सुबह सुबह जानकारी आई थी, देर रात इनफैक्ट जो जानकारी आई थी, उसके मुताबिक गोटाबाया राजपक्षे जो है वो मालदीव पहुंच
चुके हैं। वहां से भी वो बाहर जा सकते हैं। उनके भाई जो हैं बासिल राजपक्षे जो कि वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो भी निकल चुके हैं। तो ये दोनों वहां से भाग चुके हैं। अब जो नियम है वहां पर, जो जिस तरह से संविधान है उसके मुताबिक जब एक बार राष्ट्रपति निकल जाता है इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रधानमंत्री होता है वो टेक ओवर करता है प्रेसिडेंट के तौर पर। तो ये वहां पर नियम के मुताबिक वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा नहीं है कि जो अभी जब सारी समस्या शुरू हुई थी, सारे प्रदर्शन शुरू हुए थे, उस वक्त जब गोटाबाया ने नियुक्त किया रणिल विक्रमसिंघे को, तो रणिल विक्रमसिंघे कोई बहुत लोकप्रिय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको भी गोटाबाया की तरफ का, उनके पक्ष का देखा जाता है। और आपको याद होगा किस तरह से उनके निजी आवास को प्रदर्शनकारियों ने जलाकर खाक कर दिया था। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगले कुछ घंटों में पॉलिटिकल स्टेप्स वहां पर क्या होते हैं। रणिल विक्रमसिंघे क्या करेंगे? क्या जैसा उन्होंने कहा था कि वो तैयार हैं स्टेप डाउन करने के लिए, लेकिन उन्होंने शर्त भी लगा दी थी कि नई सरकार तैयार होनी चाहिए। तो नई सरकार की प्रक्रिया क्या आज शुरू होगी? क्योंकि राष्ट्रपति अब वहां पर नहीं है, ये साफ हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा था कि वो ऑफिशियली रिजाइन करेंगे, उनका रेजिग्नेशन अभी तक आया नहीं है। स्पीकर का दफ्तर जो है वो ये बता रहा है, वहां के स्पीकर का दफ्तर, कि आज इनर डे, आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो किस प्रकार से देंगे? क्या मेल भेजेंगे या किसी और प्रकार से कोई संदेश भेजेंगे और ऑफिशियली रिजाइन करेंगे? तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब वहां पर प्रदर्शनकारी भी ढूंढ रहे हैं। तो अगले कुछ घंटे जो है वो बेहद क्रूशियल होने वाले हैं वहां पर श्रीलंका में। बहुत शुक्रिया कादम्बिनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर ये भी बता दें कि जो भारत का उच्चायोग है उसकी तरफ से भी एक ट्वीट यहाँ पर आया, एक जानकारी सामने आई है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है, जो जिस तरह की अफवाहें चल रही थी, अटकलें चल रही थी कि भारत जो है उसने राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं मदद की है भारत श्रीलंका से निकलने में, या भारत में किसी तरह की शरण दी है। उससे यहाँ पर हाई कमीशन ने साफ तौर पर इनकार किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी कहा है कि भारत के श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहेगा।